Hello students, welcome to the next lecture of GOC. This lecture is based on IUPAC and common name system of alkenes and alkynes. We are going to discuss nomenclature of alkenes and alkynes, and first we'll start with alkenes. Now as we know that nomenclature system has two type of naming system. One is your tribal name system, which is called as common name, and one is the IUPAC. Okay, so we'll focus on both of them, common name as well as IUPAC, but exam mein the most important part is IUPAC, so we'll focus more on IUPAC. Okay, now let us first talk about alkenes in this lecture. Alkene, we know that the functional group of alkene is C double bond C, and general formula is CnH2n. Alkene. Now in common name system of alkene, common name system, alkenes are named as alkylene. They are named as alkylene. Okay. Plus, if the double bond position differ for same isomer, we can use Greek letters for positioning the double bond. That Greek letters are alpha, beta, gamma, and so on. Okay, you'll come to know about this. So alkylene, the common name is alkylene, and position of double bond, is given by the letters, the Greek letters alpha, beta, gamma, delta, omega, and so on, like 1, 2, 3, 4, 5. So these are the Greek letters alpha, beta, gamma in case of common name. For example, if I write down CH2 double bond CH2, so it has two carbon atom. Now it is known as alkylene. So see properly, alkylene. Alk is the root word. So there are two carbon atoms. So this eth, the first member is of alkene is ethylene. Okay. If I write down second member CH3 single bond CH double bond CH2, so this will be called as prop, 3 carbon atoms, so propylene. Okay, but if I write down CH3 CH double bond CH CH3, now it has 4 carbon atom in it. See properly, 4 carbon atom. So 4 carbon atom ke liye the common name will be butylene. But is the root word. Okay, but see the position of double bond. If you select the carbon from the left side, this will be first carbon, this will be second carbon. Matlab your double bond is present the second carbon. And from the right side, if you number 1, 2, again you will get double bond at the second carbon atom. Okay, keep this in mind. I'll give you the fourth example. CH3 CH2 CH double bond CH2. See this example properly. Again, it has a 4 carbon atom, it has a double bond, so you will say it is the common name of this compound should be butylene. Okay, but if you see properly, here the double bond is present at the first carbon atom, and here the double bond is present at the second carbon atom from the right hand side. See properly, first and second. So if I say butylene, only butylene, it creates a confusion. So we have to mention the position of double bond where it is necessary. यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से सिलेक्ट करो तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, अगर आपने ये साइड से सिलेक्ट किया तो राइट टू लेफ्ट. इफ यू सिलेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन. सो अगेन इफ सी प्रॉपर्ली, हियर द डबल बॉन्ड इज कमिंग फ्रॉम एट द फर्स्ट कार्बन एटम. इफ यू सिलेक्ट द चेन फ्रॉम राइट हैंड साइड, here it is coming at the first carbon atom if you select the chain from the left hand side. So दोनों जगह से पोजीशन सेम है, कहीं से भी पोजीशन चेंज होने वाला नहीं है. इसके लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें भी नहीं है. इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो दूसरा स्ट्रक्चर उसका ऐसा बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. सी प्रॉपर्ली. सो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है राइट हैंड साइड से, यहाँ पर आप बोलेंगे सर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है लेफ्ट हैंड साइड से, आप बोलेंगे सर ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इसको फ्लिप कर दो. इफ यू फ्लिप दिस स्ट्रक्चर इट बिकम्स अ सेम स्ट्रक्चर, जस्ट फ्लिप इट 180, इट बिकम्स द सेम स्ट्रक्चर. So no need to mention the position of double bond, but here in this case, in case of a 4 carbon atom where you are confused which butylene, because it has two different position of double bond
In first case, it is at the center, the second position, and here it is at the first position. So what you'll do, in common name system, you use Greek letters to locate them. And these Greek letters are like 1, 2, 3, 4. So double bond should get least. So if you start from here, this is your first position, that is alpha. Second position is beta. So you can see the double bond is present at the beta. This is delta. So you select the lowest one. The lowest one is the beta. The beta resembles the second position, the lowest position. Okay. This is the third position. So you don't select third position naming it. You will select the second position because it is the lowest one to the double bond. So beta is like the second position, the lowest one to the double bond. So here we'll write down this is beta butylene and this is the alpha position. I don't select alpha from here. Why? Because double bond should get the lowest number. Whether the number is an English number or a Greek number doesn't matter. It should get the lowest number. So alpha resembles 1, the lowest number. Then you have a beta, then you have a gamma, sorry, this should be gamma. Then you have a delta and omega and so on. But double bond is present which position? Alpha, the lowest one. So this is alpha butylene, this is beta butylene. So wherever it is necessary, you mention the position of double bond. Now, to see properly, 3 and 4, the structure 3 and 4 where you have a different position of double bond. Different position of double bonds. These are called as position isomers. Why? Because the position of double bond is changing, but the nature of chain is same. See, both of them have a straight chain. दोनों का chain structure exactly same है, खाली double bond का position change हो रहा है. First एक alpha पे है और एक जगह beta पे है. Okay? अब इसी का एक isomer बनाता हूँ. Fifth example, see properly. CH3, CH3, double bond CH2. So this is your alpha carbon atom having a double bond. It has 4 carbon atom. Yes sir, it has 4 carbon atom. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड अल्फा पे है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड अल्फा पे है. C4 C4, H8 H8. मतलब their molecular formula is exactly same. Position of double bond is exactly same. Only the nature of chain is different. In example 4, it has a straight chain. Here it has a branch chain. And if you see, this branch resembles iso. आपको याद होगा iso group. Second last carbon 1 methyl. It look like this. So iso, and it is again a butylene because it is made up of 4 carbon atom. Okay, but since it has an iso group, this is more preferred to call as isobutylene. If you remember, iso के बाद hyphen नहीं आता. Okay, अब 4 और 5th क्या हो गए एक दूसरे के? 4 और 5 एक दूसरे के chain isomers हो गए. क्यों? Because here the position of double bond is same, the chain is different. Chain isomers. So these are some examples where you need to remember with respect to common names. So common name they are named as propylene, they are named as alkylene, and the position of double bond is mentioned by using a Greek letters alpha beta. English में होता तो आप 1 and 2 use करते. Lowest position मिलना चाहिए double bond को. There is a usage of iso group. There can be use of neo group. अगर ये neo group में जाएगा तो neo hexylene भी बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्ट्रक्चर को ऐसा लिखा है CH3C, CH3, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, तो इफ यू सी प्रॉपरली डबल बॉन्ड अल्फा पे है, फर्स्ट पोजीशन पे ही है. बट इफ यू सी देयर आर 1 2 3 4 5 6 कार्बन. लॉन्गेस्ट कार्बन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे देयर आर 2 मिथाइल. सो दिस रिजेंबल्स विच ग्रुप? नियो ग्रुप. सो दिस इज अ नियो ग्रुप. टोटल 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज कॉल्ड एज नियो hexylene as a common name. Okay, neohexylene. Now one more example where I put a 2 double bond on it. For example CH3C double bond C, CH double bond C and double bond CH2. See this example, it has 2 double bond. Both the double bonds are consecutive, okay, one after the other. So this compound is called as allene as a common name. Okay, so these are some example of the common name, some rules of the common name. मैंने आप लोगों को समझाया है, please note it down. Okay, now I'll move on to the IUPAC system of alkenes. हम लोग ने common name discuss कर लिया, अब IUPAC system पे जाएंगे. So
In case of IUPAC system, very simple. The alkenes are named as alk number ene, when number is the least position of double bond. Least position of double bond होना चाहिए. Alk is the root word. ene is representing the functional group, that is C double bond C. तो C double bond C ये क्या रिजेंबल करता है? C double bond C. तो ये C का नंबर क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा पहले. तो दैट इज अल्क नंबर इन. उसके बाद पोजीशन आप कैसा दोगे? पोजीशन के लिए आप नॉर्मल नंबर यूज करोगे, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल नंबर्स, नॉट द ग्रीक अल्फाबेट्स. ओके, नेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर फॉर 2 डबल बॉन्ड्स, अगर 2 डबल बॉन्ड साथ में आ रहे हैं, याद रखने का, इफ यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स then they are named as alk number comma number diene, when number comma number is nothing but again the least positions of the double bond. but see properly, अब मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूँ, वो रूल दिमाग में रखना, ठीक है? एक ही डबल बॉन्ड, इफ देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड यू राइट डाउन अल्क नंबर इन. सो ये जो नंबर आप लिखोगे, सपोज द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, एनीथिंग, सपोज नंबर 2 है. So 2, तो alk 2 ene. After a number there is a e is a vowel, and before a number k is not a vowel. So there should be at least one vowel. Okay, ये rule सबके लिए अप्लाई होता है अल्काइंस को छोड़कर. There should be one vowel with a number. अच्छा, वो vowel किसका होना चाहिए? The vowel should be of functional group. देखो ये last part जो आता है, this last part is functional group. और फंक्शनल ग्रुप से पहले एक वॉवल होना चाहिए, उसके बिना नंबर नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी एटलीस्ट वन वॉवल बिफोर और आफ्टर द नंबर. 2 वॉवल्स नहीं चलेंगे. मतलब अगर मैं इसको अल्काइन लिखूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ए भी एक वॉवल है, ई भी एक वॉवल है, और ई मेन फंक्शनल ग्रुप है. सो आई जस्ट राइट डाउन अल्क. मैंने अल्केन का इस रिप्लेस कर दिया ई एन ई से, तो यू राइट डाउन अल्कीन. ओके, when number is a position of double bond. But if there are 2 double bonds, then you need to write down diene. Di means 2 double bond, and you are mentioning the position of double bond. Suppose वो double bond first or second position पे, so you write down 1, 2 diene. But D is not a vowel, and number के साथ एक vowel attach होना चाहिए. तो अगर 2 double bond हो, 3 double bond हो, 4 double bond हो, so you write down diene, triene, tetraene. बट नंबर के साथ में डी ही आएगा. इफ यू राइट डाउन ट्राई इन, टी आएगा. इफ यू राइट डाउन टेट्रा इन, टी आएगा विद नंबर, तो वॉवल नहीं आएगा. तो उसमें क्या करना चाहिए? इन दैट केस यू रिटेन द ए ऑफ अल्केन, और सिर्फ एन ई को ई एन ई से रिप्लेस करना है. मतलब 2 डबल बॉन्ड के लिए यू विल राइट डाउन अल्का नंबर कॉमन नंबर, एंड देन यू रिप्लेस एन ई विथ ई एन ई. नहीं समझो, डाइन है तो डाइन, ट्राइन है तो ट्राइन, बट यू रिटेन दिस वॉवल. सो इट इज अल्का नंबर कॉमा नंबर डाइन इफ देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स. फॉर 3 डबल बॉन्ड यू विल राइट डाउन अल्का नंबर कॉमा नंबर ट्राइन. ओके, बट दिस ए, अ वॉवल इज सस्टेन. रिमेंबर, ये वॉवल कब यूज होगा? जब नंबर के साथ में कोई वॉवल अटैच नहीं होता. और ये सारे रूल्स सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट अल्काइन. ओके, सो लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स. अब जैसा पहला एग्जांपल लेते हैं, तो पहले एग्जांपल में एक ही डबल से 1 डबल बॉन्ड सिस्टम. ओके, 6 एग्जांपल पे देयर इज ओनली 1 डबल बॉन्ड सिस्टम, नथिंग एल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल का IUPAC क्या होगा? अल्क. 2 कार्बन का अल्क होता है ईथ. ओके, सो इट इज ईथ. अब साथ में क्या लिखना चाहिए? इन. डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन से, राइट पे भी फर्स्ट पोजीशन से रहेगा, लेफ्ट पे भी फर्स्ट पोजीशन से रहेगा. सो नो नीड टू नंबर द डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. वो कब करने का? इफ यू हैव अ आइसोमर वेयर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग. अब जैसा ये है 1 2 3 डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है. ओके, बट इसका आइसोमर क्या बनेगा? इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर आप कैसा बना सकते हो? इट शुड बी ओनली 3 कार्बन एटम. समझो यहाँ आपने डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिया था, तो अगेन ये 1 2 3 डबल बॉन्ड अगेन फर्स्ट पे ही आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. इफ़ यू मेक द आइसोमर सिमिलर टू दिस, तो ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है. तो इस स्ट्रक्चर को अगर किसी ने प्रॉप 1 इन लिखा चलेगा, और अगर सिर्फ आपने
प्रोपीन लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि इन प्रोपीन द डबल बॉन्ड कम्स ओनली एट फर्स्ट पोजीशन, देयर इज नो अदर पोजीशन. 3 एंड 4 में पोजीशन चेंज होगा ऑब्वियसली. लीस्ट नंबर, एग्जाम्पल 3, यू कैन नंबर द चेन फ्रॉम एनी साइड, 1 2 3 4, 1 2 3 4. डबल बॉन्ड इज गेटिंग सेकेंड पोजीशन एज द लीस्ट. 4 कार्बन से बना है, तो अल क्या होगा इसका? इसका अल्क होगा, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, अल्क हो गया ब्यूट. कौन से पोजीशन में डबल बॉन्ड है? सेकेंड. 2, फिर क्या यूज करना है? द फंक्शनल इन. अब ये होगा फॉर फोर्थ एग्जाम्पल, यू नंबर द चेन. If you number the chain from right hand side, double bond is getting first position. If you number the chain from left hand side, double bond is getting third position. तो आप बोलेंगे सर थर्ड तो ज़्यादा है, फर्स्ट जो है वो लीस्ट है, तो आप राइट से ही नंबर करो. तो लीस्ट मतलब डबल बॉन्ड इज गेटिंग फर्स्ट पोजीशन. 4 कार्बन का चेन है मैक्सिमम, सो रूट वर्ड विल बी ब्यूट 1 इन. नाउ दिस एग्जाम्पल, कम ऑन, अभी ये ब्रांच हो गया. This example is branch. So you select the longest carbon chain having a double bond. So longest carbon chain 1 2 3, 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड भी ना. कोई बोलेगा सर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 1 2 and 3. Wrong. You cannot select 1 2 and 3. Why? Because आपको 2 कार्बन एटम which are associated with double bond should be the part of the chain. मतलब ये आपका करेक्ट चेन हो गया. आप तो ऐसा सिलेक्ट करो, या तो आपने इसको ऐसा सिलेक्ट किया है ऊपर की तरफ, तो एक ही बात हो जाएगी. नाउ डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट, सो दिस शुड बी फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड. अब ये आपका क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखते हैं. वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है. कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे. तो आई राइट डाउन 2 मिथाइल. नाउ 3 कार्बन का चेन, तो प्रॉप, फिर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड 1 इन, तो 2 मिथाइल प्रोपीन. किसी ने 2 मिथाइल प्रोपीन लिखा, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड प्रोपीन में फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है. और किसी ने अगर 2 मिथाइल प्रोपीन लिखा तो भी चलेगा. एग्जाम्पल 6, अगेन यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग डबल बॉन्ड. तो यही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा 1 2 3 4. फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लीस्ट मिलना चाहिए, तो राइट से नंबर करो 1 2 3 4. 3 पे देखो 2 मिथाइल आ गए. So first you write down the name of substituent. There are 2 methyl, so you use dimethyl. मैंने अल्केन्स में सीखा है, दोनों का पोजीशन लिखना पड़ेगा 3,3 dimethyl. Now how many carbon of alkene is? अल्कीन का पेरेंट कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का रूट इज ब्यूट. सब स्मॉल देखो, खाली फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है. ब्यूट. कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे, सो ब्यूट 1 इन. ओके, सिंपल है. 3,3 dimethyl ब्यूट 1 इन. नाउ here in this case there are 2 double bonds, so again you select the longest carbon chain. straight chain है. कहाँ से नंबर करेंगे? ऑब्वियसली आप राइट से करोगे तो फर्स्ट सेकेंड दोनों पोजीशन पे आ जाएगा. 4 कार्बन का चेन. अगर लेफ्ट से किया तो 1 2 3 and 4 आ रहा है, सॉरी 2 and 3 आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया. राइट क्या होना चाहिए? 1 and 2, बिकॉज लोएस्ट मिलना चाहिए. अच्छा, 4 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ब्यूट. लेकिन सिंस देयर आर 2 डबल बॉन्ड, सो फॉर 2 3 4, मतलब मोर देन 1 डबल बॉन्ड, वी रिटेन ए ऑफ अल्केन. सो ब्यूटा हाइफिन. फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, 1, 2 डबल बॉन्ड्स, डाइईन. ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन. कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इसके अंदर. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स एंड देन वी कैन मूव ऑन टू अल्काइंस. ओके, so I'll rub this out now. We'll do more example in only in IUPAC. Okay, तो we have done 7. Example number 8, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ले लेते हैं. आप
Example number 9. Example number 10. ओके, पॉज करो, तीनों एग्जाम्पल ट्राई करो. नाउ आई विल राइट डाउन दी आंसर्स. फर्स्ट एग्जाम्पल IUPAC. अल्कीन है, डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट. फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज 1 2 3 4 5. 1 2 3 1 2 3 4 5 का ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट, तो यहाँ से राइट से नंबर किया तो 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, सेकेंड पोजीशन पे आएगा. लेफ्ट से किया तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे आएगा. तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग. ये क्या रिजेंबल करता है? मिथाइल ग्रुप्स. So one methyl at second position, one at the fourth position. So this becomes 2, 4 dimethyl. Now कितने कार्बन का चेन है? 5. So 5 will be pent 2-ene. सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, pent 2-ene. नाइन्थ वन इज साइक्लो कंपाउंड. डबल बॉन्ड साइक्लो कंपाउंड में, तो ये आपका पेरेंट हो गया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बाहर जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है वो 2 ही कार्बन का है, दैट इज इथाइल. आपको याद होगा ET इथाइल, C2H5, जैसे CH3CH2. तो ये आपका पेरेंट हो गया. डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट. तो अगर मैंने यहाँ से नंबर किया 1 इस कार्बन को, तो ये कार्बन हो जाएगा 2, ये कार्बन हो जाएगा 3 4 5 6. कोई बोलेगा सर मैं ऐसा नंबर नहीं करूँगा, मैं नंबर ऐसा करूँगा 1 2. ना, रॉन्ग है. वाई इट इज रॉन्ग? नो, द क्वेश्चन इज के वाई इट इज रॉन्ग हियर के 1 and 2. तो याद रखने का, whenever you try to number C double bond C in a chain, अगर सपोज आपने इसको फर्स्ट कार्बन दिया तो बाय डिफॉल्ट उसका दूसरा कार्बन जो अटैच टू अ डबल बॉन्ड बिकम्स अ सेकेंड कार्बन. मतलब इफ यू गिव दिस एज फर्स्ट कार्बन, दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली 2. सो इफ यू ट्राई टू नंबर इन दिस मैनर 1 2 3 4 5 6, so you get a double bond at first position and a substituent at sixth position. तो 6 + 1 आपका आंसर होता है 7. द एडिशन ऑफ द पोजिशन इज 6 + 1. बट इफ यू ट्राई टू नंबर इन दिस मैनर, क्लॉकवाइज मैनर, 1, if you give this is first carbon, lowest number, second carbon, so automatically this becomes the second carbon. जब आपने फर्स्ट दिया तो ये सेकंड बन ही गया, क्योंकि मैंने आपको बताया C डबल बॉन्ड C में अगर एक को आप नंबर करो दूसरा सेकंड बन जाएगा. अगर ये आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसको 1 लेते हो तो ये सेकंड बन जाएगा, like that. So this becomes third. So now it has a double bond at first position and ethyl group at third position. The answer is 4. तो एंटी क्लॉकवाइज किया तो पोजीशन का सम 7 आता है, और क्लॉकवाइज किया तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन इथाइल इज कमिंग एज 4. तो वी गो विद द लोवेस्ट सम रूल. तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. थर्ड पे इथाइल है, सो आई विल राइट डाउन द नेम एज 3 इथाइल. ओके, 3 इथाइल. देन साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो हेक्स 1-ene. ओके, नाउ मॉलिक्यूल नंबर 10. इट हैज़ 2 डबल बॉन्ड. अगर बराबर देखोगे तो ये एक 6 कार्बन का साइक्लो चेन है, और बाहर 1 2 3 4 कार्बन का एलिफैटिक है. तो 6 कार्बन आपका पेरेंट हो गया, 4 कार्बन आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट. अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये ऐसा दिख रहा है, सी दिस कार्बन एटम है C, इससे एक CH3 अटैच है, CH3 आपको याद होगा 4 कार्बन में फॉर 4 कार्बन एटम्स देयर आर 4 अल्काइल्स, N-ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, sec-ब्यूटाइल एंड tert-ब्यूटाइल. सो दिस इज tert-ब्यूटाइल.
नाउ दिस स्ट्रक्चर इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. अगर आपने डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन यहाँ दिया 1 2 3 4 5, यहाँ से दिया तो 1 2 3 4 5 सेम ही आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा ये. सो इसको आप लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, 3 पे क्या है, टर्ट ब्यूटाइल. मैंने बताया था टर्ट स्मॉल होता है, ब्यूटाइल का बी कैपिटल. नाउ देयर आर 2 डबल बॉन्ड, सो यू विल राइट डाउन साइक्लो द पेरेंट वन, हेक्स इज द रूट वन, बट 2 डबल बॉन्ड तो हेक्सा. ठीक है, एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है, एक डबल बॉन्ड फोर्थ पे है, लीस्ट नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ. तो हेक्सा 1,4 डाइईन. ओके. अच्छा, अभी अगर मुझे स्टर्ट ब्यूटाइल को कॉम्प्लेक्स नेम करना है तो आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स में जो कार्बन पेरेंट से अटैच होता है वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कार्बन, तो ये सेकेंड होगा. 1 पे आपको 2 मिथाइल मिल जाएंगे, तो दिस शुड बी 3. मैंने सिखाया था कॉम्प्लेक्स में हाइफिन. थर्ड पोजीशन पे क्या है, ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा मैंने, 1,1 डाई मिथाइल, और 2 कार्बन का क्या होता है, इथाइल. आपको याद होगा टर्ड ब्यूटाइल का IUPAC नेम होता है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, क्लोज द ब्रैकेट, दैट इज टर्ड ब्यूटाइल. बाकी सब पूरा पार्ट सेम, दैट इज साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन. ओके. अब सपोज देर आर 3 कार्बन एटम्स इन अ चेन. 3 कार्बन एटम्स है, समझो 11 लेता मैं मॉलिक्यूल, ऐसा बना दिया मैंने, 3 डबल बॉन्ड बना दिया. ओके, देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स एंड देयर इज अ methyl group here, there is a ethyl group here, this is methyl group, this is ethyl group ET. Okay, and a smaller group, I'll attach one more smaller group here. Okay, let be, this is fine. Now if I want to name this chain, डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट. तो यहाँ से देखो फर्स्ट पोजीशन और यहाँ से 1 और 2 सेकेंड पोजीशन. सो यहीं से नंबर करना है 2, फिर 3 4, फिर 5 एंड 6. तो मतलब एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, एक थर्ड पोजीशन पे है, और एक का 6th पोजीशन पे है. सॉरी, नॉट द 6th पोजीशन, 5th पोजीशन पे है. सो देयर आर 3 पोजीशन 1 3 5. यहाँ से करते तो 1 2 3, तो एक 2 पोजीशन आता, एक 4 आता और एक 6 आता, तो वो ज़्यादा होता 2 4 एंड 6. यहाँ पर 1 3 एंड 5 है, 9 होता है. वहाँ 2 4 एंड 6 होता, 12 होता. तो दिस इज करेक्ट वे. फोर्थ पे मिथाइल है, थर्ड पे इथाइल है, तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली ई कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो थर्ड पे इथाइल आ गया. सो यू विल राइट डाउन एज 3 फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल इथाइल, 4 मिथाइल, देन इट हैज़ अ 7 कार्बन एटम का चेन. तो 7 कार्बन के लिए मुझे हेप्टा लिखना होगा. हेप्टा 1,3,5 ट्राईन. देखो हेप्टा का ये वॉवल आएगा साथ में. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. देन विल स्टार्ट विथ अल्काइन्स. Okay guys, let's start with the IUPAC of alkynes. Now we know that alkynes they have a functional group representation as C triple bond C and formula CnH2n minus 2. Okay, now alkyne has 3 types of naming system. A, which is a common name system where very few alkynes are known, like the first member of alkynes H, C triple bond CH, it is named as acetylene. Okay, acetylene आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में. एक H को CH3 से रिप्लेस किया मिथाइल से, C triple bond CH, this is called as alylene. Okay, and third CH3, 4 members, triple bond CCH3, this is called as crotonylene. जिससे क्रोटाइल ग्रुप अलाइल ग्रुप निकला था. तो these are very few examples
of alkynes, the common name. Second, they have a derived name system. Derived name में क्या करना है? We know that कि जो सबसे small is the first alkyne is acetylene. तो derived name में you have to consider this C triple bond C as acetylene, and the remaining alkyl groups attached to it will be named as alkyl. For example, मतलब derived name में they are named as alkyl acetylene या alkyl acetylene. Okay, or if they are two same group, dialkyl acetylene, where acetylene resembles 3C triple bond C. Then remember, when you write down alkyl, this should be in alphabetical order. For example, if I write down CH3 C triple bond CH, now derived name लिखना है, तो this C triple bond C is acetylene. It has one methyl group, so now it will be named as methyl. The remaining part is acetylene. Suppose if I write down CH3C triple bond CCH3, so it has two methyl groups and acetylene in the center, so this will be called as dimethyl, two methyl groups, the either side of C triple bond C, dimethyl acetylene. Then suppose I take this example of CH3 CH2C triple bond C CH3. So this example में it will be called as, come on, here it has a ethyl group ET, here you have a methyl group Me, and there is a acetylene. So you will alphabetically E come first, so this will be called as what? Ethyl methyl acetylene. Simple, E come first alphabetically. One more example, suppose if I take a CH3 CH CH3C triple bond C CH2 CH3. So on the right hand side you have a group isopropyl, left hand side पे isopropyl, right hand side you have a ethyl, so E come first. So now it is written as, the name will be ethyl isopropyl. आपको याद होगा iso में I compare करते हैं, ethyl isopropyl, and now you have acetylene in the end. You write acetylene in the end, resembles C triple bond. See, this is derived name. So everything should be considered as a derivative of acetylene. You keep on doing substitution and left and right hand side together, different compounds, you name it accordingly with respect to the word acetylene in the end. Please copy it down. Okay, now let's move on to the IUPAC system. सबसे easy system IUPAC होता है, एक standard form होता है. तो if you learn IUPAC properly, half of your problem of solving MCQs will be over, because you can able to write down the structure properly. तो आप reaction सोच सकते हो उसमें. Now in case of IUPAC system, simple है. They are named as alk, again number, but this time yne, YNE, where number is the least position of C triple bond, C होना चाहिए. Alk number yne, it's IUPAC. If there are more than one triple bond, alka. If you remember that, alkene से ही लेना है हमको. Okay, let's take an example. CH3C triple bond CH. Now here the position of triple bond won't change. 1 2 3. इसका अगर आइसोमर बनाया तो वो ऐसे ही बनेगा कुछ. ट्रिपल बॉन्ड CCH3 1 2 3. तो दिस विल बी कॉल्ड एज 3 कार्बन का इस प्रॉप 1 आइन लिखा तो भी चलेगा. किसी ने अगर सिर्फ प्रोपाइन लिखा तो भी चलेगा. वाई? बिकॉज द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड वोंट चेंज. आपको याद होगा डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड वोंट चेंज, सिमिलर टू डबल बॉन्ड. सपोज मैंने ऐसा स्ट्रक्चर लिया है CH3, then you have a C triple bond C CH3. तो 1 2 3 4, राइट से भी किया तो 1 2 3 4. तो दिस विल बी कॉल्ड एज ब्यूटाइन, सेम एज डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड की जैसा ही है, इन की जगह आइन लिखना है. एवरीथिंग विल बी सेम. समझो ये एग्जाम्पल दिया है. इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल CH3 C CH3 CH3 C triple bond C CH3.
So triple bond, select the longest carbon chain. This is your longest carbon chain. Triple bond should get a least position. तो यहाँ से क्या तो 1 2 3 मिलता है, यहाँ से क्या तो 1 2 मिलता है. तो right hand side 1 2 3 4 5. 4 has 2 methyl, so this will be called as 4,4. Position of substituents first, then parent. So 4,4 dimethyl pent 2-ine. Okay. Now fourth example. Suppose we take CH3C triple bond C, CH2C triple bond CH. Now in this example, there are two triple bond. Okay. अब इसके अंदर उसका पोजीशन मेंशन करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड राइट लेफ्ट से किया तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आता है, 3 4 फिफ्थ पे आता है. तो 2 + 5 यहाँ से स्टार्ट किया तो 2 + 5 is 7. राइट से किया तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1 + 4. 1 + 4 is 5. तो लीस्ट होगा अगर राइट से किया तो 1 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है. 6 कार्बन है. 6 कार्बन मतलब, और 2 ट्रिपल बॉन्ड है मतलब हेक्स नहीं, हेक्सा. हेक्सा 1,4 डाइआइन. ठीक है. वाई हेक्सा, बॉवल का रूल मैंने सिखाया था. नाउ फिफ्थ वन, सपोज आई टेक अ एग्जांपल ऑफ साइक्लो कंपाउंड. ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, एक और एक बॉन्ड बना दिया. क्या ये पॉसिबल होगा इसके अंदर? सी प्रॉपर्ली. 1 2 3 4 5 हो रहा है. नहीं हो रहा है सर, इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज इट हैज़ वॉट 5 वैलेंसी. तो 5 वैलेंसी हम लोग ये सिलेक्ट नहीं कर रहे इसके अंदर. ठीक है. तो अब व्हाट आई विल डू, एक ओपन कर देता हूँ मैं एंड आई मेक अ न्यू कंपाउंड लाइक दिस, अ बॉन्ड लाइन 1. So it has a triple bond here. Okay, a triple bond in the start. Then you have a isopropyl group here. Okay, so obviously यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. So third पे isopropyl I can write down 3 isopropyl, but अब मैं isopropyl नहीं लिखूंगा. I write down a complex name. So this is the first carbon. Second 1 पे क्या है? मिथाइल. और 2 कार्बन का क्या होता है? इथाइल. सो आई कैन राइट डाउन 3 ब्रैकेट 1 methyl ethyl instead of isopropyl. Close the bracket. There are how many carbon atoms? 7 carbon का chain. तो हेप्टा 1,4 डाइआइन, क्योंकि एक फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और एक फोर्थ पे है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट IUPAC ऑफ अल्काइन्स. प्लीज कॉपी इट डाउन. I'll left this out. अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं. दैट इज व्हेन यू हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स टुगेदर. सो compound with C double bond C and C triple bond C together, they are called as, देखो डबल बॉन्ड के लिए ई निकाल दो, वॉवल निकाल दो, ई निकाल दो, रिप्लेस इट बाय YNE. दीज आर कॉल्ड एज इनाइन्स. तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज इनाइन. ये याद रखने का, जिसमें सबसे पहले इन का लिखने का नेम एंड देन फिर आइन का. इन रिजेंबल्स द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड YNE इज फॉर द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इज मेंशन ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सो इनाइन सबसे पहले इन आएगा और फिर उसके बाद में आइन आएगा. दे आर कॉल्ड एज एनाइन्स. C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C आर कॉल्ड एज anions. Now remember, you number the chain from that side where multiple bond get least number. Okay, so multiple bond get least number मिलना चाहिए. Okay, but for a tie between C double bond C and C triple bond C is broken in favor of C double bond C for least position. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए. Let's take one example, simple example.
CH2 डबल बॉन्ड CH C triple bond C CH3. So in this example there are one double bond, there is one double bond and this is a triple bond. तो रूल सेज के मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट नंबर. मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको आप मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं. एक से ज्यादा जो बॉन्ड होगा उसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं. तो डबल बॉन्ड इज अ मल्टीपल बॉन्ड, इवन ट्रिपल बॉन्ड इज अ मल्टीपल बॉन्ड. नाउ इट शुड गेट अ लीस्ट नंबर इन दिस. सो इफ यू नंबर द चेन फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2, a multiple bond is getting second position. If you number the chain from left hand side 1 2, a multiple bond, double bond is also a multiple bond, is getting which position? First position. So 1 2 3 4 5 will be the correct one, and 1 2 3 4 5 is incorrect. Here multiple bond is getting second position and your multiple bond is getting first position. तो यही सिलेक्ट करने का जिसमें से कोई भी मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन आए. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये लिखा, बराबर देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. तो अगर मैं यहां पर नंबर कर रहा हूं तो देयर पर दो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल एंड ट्रिपल. तो यर इफ आई नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड इज गेटिंग विच पोजीशन? फर्स्ट, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज अ मल्टीपल बॉन्ड. If I number from right hand side 1 2 3 4 5, double bond is a multiple bond, it is getting second position. But मैंने क्या बोला? multiple bond should get least. तो ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया. मतलब आपको ये देखना नहीं है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं. तो जो लीस्ट मिलेगा उसको नंबर कर दो. टाई होगा तो दैट इज ब्रोकन इन फेवर ऑफ डबल बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल नंबर 3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर मैंने लेफ्ट से नंबर किया 1 2 3 4, सर डबल बॉन्ड को फर्स्ट मिलता है. राइट से नंबर किया 1 2 3 एंड 4, सर ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट मिलता है. मतलब मल्टीपल बॉन्ड इज गेटिंग फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड. अब कंफ्यूजन आया तो टाई इज ब्रोकन इन फेवर ऑफ डबल बॉन्ड फॉर लीस्ट पोजीशन. मतलब डबल बॉन्ड को ये करेक्ट हो जाएगा लीस्ट पोजीशन और ये इनकरेक्ट होगा. तो आपको ऐसा नंबर करने का. अगर टाई हुआ तो डबल बॉन्ड को लीस्ट देने का. बट सबका नाम इनायन फॉर्मेट में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पहला मॉलिक्यूल बराबर देखो, इनकरेक्ट वे में निकाल देता हूं. सो दिस इज द करेक्ट वे. 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? पेंट. वो लिख देने का. फिर इनायन आएगा, पहले इन आएगा, इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट 1 N. फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? थर्ड 3 आइन. देखो एनायन आ गया ना, सिंपल है. अब देखो ये है इनकरेक्ट वे नंबरिंग का, मैं निकाल देता हूं. आई रिमूव दिस अप. नाउ यू टेल मी, थिंक, थोड़ा सोचो. 5 है मतलब पेंट. फिर किसका नाम लिखने का? पहले एन का. डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे. सो पेंट 3N 1 आइन. देखो पोजीशन डजंट मैटर, आपको एन और आइन के समझना है कि एन शुड बी रिटन फर्स्ट एंड आइन शुड बी रिटन आफ्टर दैट. सिंपल है. अगेन योर आई रिमूव द wrong way of numbering. So with respect to correct way of numbering, there are 4 carbon atoms. So this is nothing but bute. Okay. Then first write down the name of double bond 1 N, then 3 ine. Okay. Please copy it down. Short example कर दे. Now example number 4, my favorite bond line formula. Two double bonds, one triple bond. ठीक है. Now in this example, obviously अगर मैं यहाँ से नंबर किया ट्रिपल बॉन्ड गेट फर्स्ट पोजीशन, इफ आई नंबर फ्रॉम योर डबल बॉन्ड गेट फर्स्ट पोजीशन. So tie is broken in favor of double bond. So this is first position, second position, third, fourth, fifth, sixth and seventh. Now first position has double bond, third position has double bond, sixth position has triple bond.
टोटल 7 कार्बन एटम, मतलब ये हो गया हेप्टा। सर हेप्टा क्यों लिखा? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं और एन आपको पहले लिखना है इन। सो 1,3 डाई इन, एन ई नहीं डालना। क्यों? क्योंकि आइन आने वाला है। कौन से पोजीशन पे? 6। सो 6 आइन। ओके, डाई इन 6 आइन, ऐसा होना चाहिए नेम। ओके, अभी मॉलिक्यूल नंबर 5 लेते हैं। लेट्स ट्राई। ट्रिपल बॉन्ड, a double bond here and a triple bond here. So obviously triple bond will get these, so right से करना है तो this is your first carbon here, second carbon, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. We have a triple bond at first position, double bond at third position and triple bond at fifth position. 8 carbon मतलब it should be octa, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड आने वाले हैं octa, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड क्या आने वाले, लेकिन पहले आप नाम किसका रखते हो? डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही टाइम है, तो ऑक्ट 3 इन। अब बराबर देखना इसमें मैंने क्या डिफरेंस दिखाया। देयर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, सो यू विल राइट डाउन 1,5 डाई आइन। तो यहां पर प्रॉब्लम हो गई वॉवल की, क्योंकि डाई आइन का डी आ रहा है, तो अब ई एन ई का इन रखना पड़ेगा हमेशा। देखो यहां पर सिर्फ आइन था तो मैंने हेप्टा छोड़ दिया, ए छोड़ दिया फॉर अल्कीन के लिए। यहां पर अल्कीन सिर्फ एक ही है, इन, तो ई एन लिखना था, ठीक है, लेकिन आइन नहीं था, डाई आइन था, इसके लिए एक वॉवल छोड़ना पड़ेगा नंबर के पास, इन। सो वे टू लीव दिस ए एंड ई, यू नीड टू बी वेरी क्लियर। अल्कीन का ई छोड़ दिया है मैंने आपको पहले बताया था। इनाइन किससे बना है? जब अल्कीन का ई निकाल के आप क्या डालते हो? वाई आइन ई। बट अगर डाई आइन होगा तो आपको ई छोड़ना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर ई छोड़ा है। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग समझने के लिए। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल here there is a triple bond, okay, double bond, triple bond and a double bond. Now multiple bond should get least, so if I number from this side 1 2 मिलेगा, 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर 3 4 पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर 5 6 पे आएगा डबल बॉन्ड, फिर 7 फिर 8 पे आएगा। बट इफ आई नंबर फ्रॉम यूर आई गेट अ ट्रिपल बॉन्ड एट फर्स्ट पोजीशन इटसेल्फ, नॉट एट सेकेंड, तो मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई टाई नहीं हो रहा। तो ये 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 3 पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज 4 5 पे आ रहा है, दिस 6 और दिस इज 7 पे आ रहा है, दिस इज 8 एंड दिस इज 9, नो नेम। ओके, नाउ वी नीड टू राइट डाउन देयर आर 2 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों के लिए वॉवल बराबर देखना है। पहले हम लोगों को 9 कार्बन के लिए नॉन लिख देता हूँ मैं, नॉन, एन नहीं लिखता हूँ। नाउ वी हैव 2 डबल बॉन्ड at third position and at 7th position, so hyphen 3,7 di-n, di-n, समझो मैंने di-n e लिख दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर इनाइन लिखना चाहिए, इसको हटाया तो बाद में लिख देते, ओके, राइट इट डाउन आफ्टरवर्ड। सो di-n, बट सिंस देयर इज अ डी, मुझे ए छोड़ना पड़ेगा, नोना, अल्केन का ए छोड़ना पड़ेगा। नाउ अल्काइन के लिए यू हैव अल्काइन एट 5th पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन, सो 1,5 डाई आइन हो गया। तो देखो आगे डी आ गया आइन से पहले, तो यहाँ पर हेक्सीन का ई रखो, so you keep a E here, you keep a A here, because A is for diene and that E is sustained for diene, क्योंकि वॉवल दिखना चाहिए नंबर के साथ। देख लो, या तो बाद में या तो पहले। अगर बाद में डाई ट्राई से कवर हो गया तो पहले आपको डालना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर मैं यहाँ ए क्यों नहीं डालूँ, तो ए क्यों डालना है? ये अल्कीन का ई निकाल के आई एन ई आया था इनाइन में, तो ए नहीं आएगा, ई आएगा इसके अंदर। ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल। इफ यू हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मैंने सारे पॉसिबिलिटीज ले ली है, कंप्लीटेड, राइट इट डाउन, प्रैक्टिस इट एट होम। ओके, सी यू देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IUPAC कवर करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइन, नाइट्रो कंपाउंड को सब करेंगे, और मिक्स फंक्शनल ग्रुप्स उसके अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय।